The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. The big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Hello everyone, welcome to the AmCam. How are you? I hope you must be studying very well. So today we gonna started a new topic. The name is oxidation. This topic is very important for all competitive exam which is related to the chemistry. I don't know, people say the organic chemistry is very tough, but if you have a conceptual clarity, then the organic chemistry is very easy. So now let's get start our lecture. So firstly we learn about the basic concept of the oxidation. I mean, what is oxidation? Oxidation. Okay, you all know about the oxidation because we all study this in class 11th or 12th. So what is the main point of the oxidation? First is addition of oxygen. Addition of oxygen is oxidation. Okay, second is removal of electron. Removal of electron is also oxidation. Third is increase in oxidation state. Increase in oxidation state. It is also increase in oxidation is also oxidation. And fourth one is removal of hydrogen. Okay, so this is the main basic point of oxy. Okay, so if I take an example, so let me take alkene. You all know about the alkene. Okay, so this is alkene. Okay, if I take the oxidizing reagent like MCPBA, metachloroperbenzoic acid. What is the work of MCPBA? It is form the epoxidation. It is form the epoxide. So we will study their mechanism further. Okay, now this is the basic idea about the oxidation. So here is epoxide formation. Okay, so now look, what is the first point? Addition of oxygen. There is no oxygen, but if I take a reagent like MCPBA, there is addition of oxidation. It is called epoxide. And also if we take another example of alkene and take another oxidizing reagent like OSO4, osmium tetraoxide. What is the work of osmium tetraoxide? It is generate a syn. It is formed the syn diol. Okay, so here it is form a syn diol. Okay, here also the addition of oxygen. And if you talk about the increase in oxidation state, it is generally study the metal ion. In electrochemistry we had studied this, or oxidation and reduction. So let me take an example like iron Fe2+. Okay, here iron is 2+ oxidation state. If we remove their electron, okay, now we remove one electron of Fe2+, that is there is converted to 3+ oxidation state, and here is removal of electron. So the removal of electron is also here, and increase in oxidation state is also here. What is the electronic configuration of iron? In their d orbital, 6 electron is present in d orbital. So this is the removal of electron and it is called also oxidation.
So I hope you easily understand this concept of oxidation. Now let's move forward. This is a very interesting topic, so stay with me and learn the conceptual clarity. So first we will study the transformation of functional group transformation. Oxidation of functional group. We all study this in class 11th or 12th. So functional group, we all know that there in organic chemistry different variety of functional group is present, like alcohol, carbonyl compound, and alkene, amine, hydroxide, different type of functional group. In the oxidation, these all functional group are oxidized by oxidizing agent. So first we have basic idea about the functional group. I mean, if that functional group is oxidized, then which of the product is formed. So first is primary alcohol. Okay, this is a 1 degree alcohol. 1 degree alcohol or primary alcohol, we say this. Okay, so if I took oxidizing agent, their mechanism we will study further. Okay, now this is a basic idea about the oxidation of functional group. Oxidation of functional group. If we oxidize this primary alcohol, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं कोई भी. ओके, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में. CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H. तो देखिए, जब हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड. बेसिक आइडिया अबाउट द फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडेशन. ओके, सो फर्स्ट देखिए, अगर हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में. यह क्या है? एल्डिहाइड है. If we convert the 2 degree alcohol, if we doing the 2 degree alcohol oxidation, so this alcohol is converted to, this is the product. The product name is ketone. This is ketone. Okay, now look, this is the aldehyde. If you do the oxidation of aldehyde, the oxidation of aldehyde give carboxylic acid. And this is the 1 degree alcohol. 1 degree alcohol if oxidized, then this is converted to carboxylic acid. All their mechanism we will study further. Okay, so don't worry about the mechanism. Now this is the aromatic compound. What is the name of this compound? Toluene. This is the toluene. If we doing the oxidation of toluene, so this is converted to benzoic acid. Now this is the alkene. If we doing the oxidation of alkene, so alkene is converted to ये क्या है? एल्डिहाइड. और ये क्या है? कीटोन. ठीक है, अगर हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन.
और देखिए अगर एक और एल्किन है, अगर उसका भी हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंट रिएजेंट होते हैं जो डिफरेंट क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। और ये क्या है, कीटोन है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, एल्काइन। अगर हम लोग एल्काइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्काइन कौन सा प्रोडक्ट में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए एल्किन है, अगर हम लोग एल्किन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कौन सा रिएजेंट, कोई अगर जैसे कोई ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट लेते हैं जो क्या करे, एल्कोहल का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पास क्या फॉर्मेशन होता है, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन होते हैं, फॉर्मेशन होता है ना। जैसे कौन सा हम लोग ऑक्सीडाइजेशन एजेंट ले लें, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले ले, तो वो कौन सा फॉर्मेशन करता है, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए अगर एक एल्किन का ऑक्सीडेशन कराए तो क्या करता है, इपॉक्साइड का बनाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन कहते हैं। अगर सिन डाइऑल का ऑक्सीडेशन कराए तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ठीक है, ये जो है ये बेसिक आइडिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ताकि जैसे अगर आपके पास अगर रिएजेंट है और आपको पता लग रहा है कि 2 डिग्री एल्कोहल है और कोई रिएजेंट दिया हुआ है, तो आप इसको आसानी से कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इन सभी का मैकेनिज्म हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है कि सर तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं बताएंगे। हम लोग डिटेल में इसका मैकेनिज्म को आगे स्टडी करेंगे। ये तो बेसिक आइडिया है आप लोग को, ताकि इससे थोड़ा क्लैरिटी मिले। अब अगर हम लोग, ये जो है बेसिक आइडिया है कि जिस भी कंपाउंड में अगर एल्किन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग कौन सा रिएजेंट लेंगे जिससे हमें कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए जैसे कि ये एल्किन है ना, अगर हम लोग एक्वस KMnO4 लेते हैं, एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं रिएजेंट, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर हम लोग, ये क्या है, अल्फा पाइनिन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पाइनिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, देखिए ये क्या है, एल्किन है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो ये भी क्या है, एल्किन है। अगर एल्किन के हम लोग सिन डाइऑल और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रिएजेंट लेकर अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिनोनिक एसिड बोलते हैं। तो हमें क्या मिलता है, पिनोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर देखिए ये क्या है, इस कंपाउंड में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर हम लोग PCC लेते हैं, PCC को क्या बोलते हैं, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। ये देखिए ये क्या है, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ क्या है, क्लोरीन है, और क्या है, 3 ऑक्सीजन है, और ये क्या है, क्रोमियम है, और ये क्या है, पायरिडीन है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम लोग पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट ले रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। देखिए क्या है, अल्फा है और ये बीटा है, और ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ऐसे ही अब देखिए ये दूसरा कंपाउंड है। अगर इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ये क्या है, क्रोमेट है, और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है ना। तो हमें क्या मिलता है, इसमें भी हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अब ये देखिए ये क्या है, फिनाइल एल्किन है ना, डाइफिनाइल एल्किन। तो इसमें अगर हम लोग पोटेशियम क्रोमेट लेते हैं ना, क्रोमेट लेते हैं, सिर्फ क्रोमेट और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, है ना, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इपॉक्साइड का प्रोडक्ट मिलता है। अब ये क्या है, नॉरबोर्निन है। नॉरबोर्निन में अगर हम लोग परबेंजोइक एसिड लेते हैं तो ये भी क्या करता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब अप साइड में से करेगा कि डाउन साइड में करेगा, इसको हम लोग मैकेनिज्म में आगे समझेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, साइक्लोहेक्सिन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन है। अब साइक्लोहेक्सिन का हम लोग, ये क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड है ना, सेलेनियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हम लोग कराते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसमें भी क्या मिल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। और ये एल्किन है, एल्किन का अगर हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिन डाइऑल मिलता है, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, 1,2 डाइऑल। Okay, so this is the basic idea of the oxidation of alkene. Now let's move forward.
अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का ऑक्सीडेशन करें, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं KMnO4, तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम एल्काइन का एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में pH 7.5 में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइकीटोनिक कंपाउंड मिलता है। वैसे अगर हम लोग एल्काइन का थैलियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइकीटोनिक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग थैलियम, ये क्या है, एल्काइन है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए यहाँ पास क्या था, एल्काइन था ना, दूसरा एल्काइन था, लेकिन यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोग इसका थैलियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी जो है बेसिक आइडिया है ना, इसका भी का मैकेनिज्म हम लोग आगे स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या वेरिएशन होता है, किस टाइप का मैकेनिज्म को फॉलो करके हम लोग ये प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, सभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये सिर्फ बेसिक आइडिया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से अल्कोहल में हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये भी बेसिक आइडिया है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल का, है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगर हम लोग डिफरेंट रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, 1 डिग्री OH है, ठीक है, ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है ना। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये क्या हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अब दूसरा में अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, कितने में ले रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोनस रिएजेंट बोलते हैं। ये क्या है, जोनस रिएजेंट है, ठीक है। इसमें तो बहुत सारा वेरिएशन है ना, इसको तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये जब हम लोग जोनस रिएजेंट ले रहे हैं CrO3 और एक्वस H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस में, तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग 1 डिग्री OH ही, ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है, ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है ना। अगर 1 डिग्री OH को ही जोनस रिएजेंट लेके, है ना, जोनस रिएजेंट ये भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है। अगर 1 डिग्री OH का हम लोग, ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और हम लोग क्या रहे हैं, PDC, पाइरीडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। और ये क्या है, पैलेडियम डाई एसीटेट पाइरीडियम है, ठीक है। और ये क्या है, Ag2CO3, और ये क्या है, सिलाइट ले रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैटिजोन रिएजेंट बोलते हैं। ये क्या है, फैटिजोन रिएजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या लिए हम लोग, PTHCl DCC DMSO ले लिए, और अगर COCl2 DMSO और ट्राईथाइल अमीन ले रहे हैं, है ना, टर्सरी अमीन ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। ये सभी क्या है, डिफरेंट रिएजेंट है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, है ना। अगर ये ले ले तब भी हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, या फिर ये ले ले तब भी हमें एल्डिहाइड ही मिलेगा, ये प्रोडक्ट ले ले तब भी हम लोग एल्डिहाइड ले लें मिलेगा, है ना। PDC और PCC, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, इसको भी हम लोग आगे एकदम डिटेल के साथ, मैकेनिज्म के साथ और डिफरेंट टाइप के इसके वेरिएशन के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है ना, ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड ले रहे हैं और एसीटोन ले रहे हैं ना, तो और क्या ले रहे हैं, PDC और रुथेनियम डाइक्लोराइड ले रहे हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, बेंजोइक, ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है ना, ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है। अब हम लोग क्या रहे हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड लेने भी क्या बना रहा है, बेंजोल्डिहाइड बना रहा है ना। और ये क्या है, ये भी क्या है, 1 डिग्री OH है ना, 1 डिग्री OH है। अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्या ले रहे हैं, ईथर क्या है, सॉल्वेंट है, एसिडोन भी क्या है, सॉल्वेंट है ना।
तो हमें क्या मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो ये हो गया आइडिया ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। इससे हमें क्या होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि जैसे अगर ये सब रिएजेंट हम लोग दे रहे हैं या जैसे हम लोग CrO3 एक्वस H2SO4 ले रहे हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर से हम लोगों को मैग्नीशियम याद नहीं रहा, मैग्नीशियम भूल गए, तो हम लोग एक आइडिया तो मिल जाएगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो एल्डिहाइड बनाएगा और जब 25 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठान लिए है तो करना है, ठान लिए है तो करना है। तुम उसको बुक अप बनाएगा रे। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल किसको बोलेंगे, जिसके पास 2 कार्बन, जिस एल्कोहल से एल्कोहल से कार्बन अटैच है, उस कार्बन के साथ 2 और कार्बन ज्वाइंट होने चाहिए। तो देखिए क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल में ऐसा कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे हम लोग जिससे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, कीटोन का, है ना। 2 डिग्री एल्कोहल जनरली किसका फॉर्मेशन करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए जैसे हम लोग पहले ले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएजेंट रहेगा तो ये भी क्या करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, है ना, एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद PCC या फिर PDC ले लेते हैं। PCC क्या था, पर क्लोरोक्रोमेट, इसके पहले हम लोगों ने देखा था। और PDC क्या था, पायरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट, है ना। तो इससे भी क्या होगा, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखिए K2Cr2O7 और H2SO4, अगर इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, इसमें क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, इसको भी आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये भी क्या करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना। तो ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ना, तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। जोनास रिएजेंट लेते हैं। जोनास रिएजेंट क्या करता था, 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता था, एल्डिहाइड में। और ये जोनास रिएजेंट 2 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कीटोन में। और ये क्या है, Cr2 डाइक्रोमेट डाइपायरिडीनियम है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिन रिएजेंट बोलते हैं। ये क्या है, कोलिन रिएजेंट है। इसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है ना, इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, इम्पॉर्टेंट है वो। ये क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट और पायरिडीन, ये भी क्या करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, वैनेडियम हेक्सा ऑक्साइड है, ये भी क्या करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। और क्या है, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, और ये क्या है, सोडियम पर आयोडेट है, ये भी क्या करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। देखिए इसके साथ एक कार्बन, इस एल्कोहल से जुड़े कार्बन पे, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, 2 कार्बन है। और देखिए ये कार्बन के साथ सिर्फ क्या है, एक ही कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब ये जो क्या है, कोलिन रिएजेंट। और कोलिन रिएजेंट क्या होता है, ये सेलेक्टिव होता है ना। ये क्या करता है, 1 डिग्री का रिडक्शन, 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन ना करके क्या करता है, ये 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या करेगा, कीटोन बन जाएगा ना। लेकिन 1 डिग्री का क्या करेगा, नहीं करेगा, है ना, इसका नहीं करता, इसका बस करता है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है। अब देखिए क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है ना। साइक्लोहेक्सेनॉल का अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड और वैनेडियम हेक्सा ऑक्साइड के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या है, इसमें ब्रेकेज ऑफ रिंग होता है, रिंग का ओपनिंग होता है, और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक टाइप कंपाउंड बनाता है ना। ये भी देखिए, ये क्या है, ये क्या है, पर आयोडेट है ना। ये क्या है, पर आयोडेट है, पर आयोडिक एसिड भी बोलते हैं, फिर पर आयोडेट भी बोल सकते हो, है ना। क्योंकि ये क्या करेगा, H पॉजिटिव, I पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना।
तो पर आयोडिक एसिड है, जैसे पर क्लोरिक एसिड है HClO4, वैसी पर आयोडिक एसिड है ना। तो ये भी क्या करता है, ये क्या फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था सेकेंडरी अल्कोहल का। अब हमारे पास एक और अल्कोहल बच गया, वो कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल। उसका भी हम लोग डिफरेंट रिएजेंट के साथ डिफरेंट वेरिएशन स्टडी कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो ये क्या है, ये देखिए क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उससे उसके साथ 3 और कार्बन क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री OH बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराए, इस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को लेके क्या है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन करेगा। अगर वैसे ही अगर हम लोग डाइऑल टाइप का अगर कंपाउंड ले लेते हैं और पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री में, है ना। उसके बाद देखिए ये भी क्या है, डाइऑल है ना, 1,2 डाइऑल है, ये क्या है, 1,2 डाइऑल। तो इसका भी अगर हम लोग लेड, पीबी क्या है, लेड है, लेड टेट्रा एसीटेट, OAC क्या है, एसीटेट है, इसके प्रेजेंस में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। वैसे ही यहाँ अगर ये क्या है, अनसेचुरेटेड अल्कोहल है, अगर इसका हम लोग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और CHCl3 के प्रेजेंट में, CHCl3 के प्रेजेंट में अगर हम लोग इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है ना। तो ये था टर्शियरी अल्कोहल का, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे। तो ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। फिनॉल का क्या होता है, बेंजीन के साथ OH अटैच होता है ना, ये क्या होता है, OH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराइए, क्या है, फिनॉल के डिराइवेटिव है ना। तो अगर हम लोग फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। वैसे ही अगर हम लोग लेड टेट्राएसिटेट के साथ फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है, पोटेशियम टेट्राऑक्सोब्रोमाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है ना। इसके साथ भी अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये भी क्या है, फिनॉल है, इसके साथ क्या है, डिफरेंट, ये क्या है, एल्किन अटैच है ना। तो इसका अगर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों के मिक्सचर के साथ हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। ये क्या है, फिनाइल है, ये भी क्या है, फिनॉल है ना। तो फिनॉल का यहाँ भी हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना। यहाँ पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये भी क्या है, OH के जगह में, H के जगह में क्या आ गया, M ही आ गया है। तो ये भी क्या है, इसका अगर हम लोग HNO3 के साथ और CH3COOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी डिफरेंट क्या है, वेरिएशन है, इसे भी हम लोग अच्छे से मैग्नीशियम के साथ डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल हो गया। अब हम लोगों का बच गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। उन दोनों का भी हम लोग थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर तो हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। जैसे देखिए ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अगर बेंजल्डिहाइड का हम एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ
रिएक्शन कराए, ऑक्सीडेशन कराए, तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड मिलता है ना। वैसे ही देखिए ये भी क्या है, एल्डिहाइड है, CHO क्या है, एल्डिहाइड है। इसका ऑक्सीजन और एयर और सिल्वर डाई सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराए तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये भी क्या है, एल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड है। इसका सेलेनियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराता है तो हमें क्या मिलता है, डाइकीटोन टाइप का कंपाउंड मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है, CHO है ना। ये यहाँ पास भी क्या है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पास भी एल्डिहाइड है। इसे हम लोग सिल्वर ऑक्साइड और सोडियम साइनाइड की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में भी डिफरेंट टाइप के रिएजेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। तो देखिए जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले कीटोन ले रहा हूँ। ये क्या है, देखिए पर बेंजोइक एसिड है, ये क्या है, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है, और ये क्या है, पर एसिटिक एसिड है ना। ये तीनों जो है क्या है, अलग अलग रिएजेंट है ना। अगर हम लोग पर बेंजोइक एसिड लेते हैं तो क्या बनता है, ये क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्रकार से ये क्या है, एस्टर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है ना, COOR एस्टर का, है ना। ये क्या है, क्लोरिक एसिड ले रहे हैं तभी एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और RCOOH ये क्या है, पर एसिटिक एसिड है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये भी देखिए भी क्या है, कीटोन है। कीटोन का यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पर ये क्या है, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, तो यहाँ पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। साइक्लिक सिस्टम में आ गया तो अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पास भी देखिए कीटोन है, तो यहाँ पास भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी क्या है, टेट्राफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। अब देखिए सेलेनियम डाइऑक्साइड है, सेलेनियम डाइऑक्साइड का हम लोग अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं कीटोन का तो हमें क्या मिलता है, डाइकीटोनिक कंपाउंड मिलता है ना, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। और देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन है। साइक्लोहेक्सेनोन का अगर हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, डाइकीटोनिक कंपाउंड है ना। अब डाइकीटोनिक कंपाउंड है, अगर हम लोग इसको पर आयोडिक एसिड या फिर पर आयोडेट है ना, इसके प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप थे जिनका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग आगे इसका डिटेल मैकेनिज्म और इसके डिफरेंट टाइप के वेरिएशन को स्टडी करेंगे, है ना, ठीक है। ये क्या है, एक बेसिक आइडिया है ताकि आप लोग को पता चल सके कि हम लोग कौन सा जो ग्रुप है वो किस फॉर्म में कैसा टाइप का प्रोडक्ट, कौन सा रिएजेंट रहेगा तो कैसा प्रोडक्ट बना सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एल्किन का जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके मैकेनिज्म को, जिसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, इपॉक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।